अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। और नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क के नामवर फिल्म डायरेक्टर हीरा सुपरहिट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदके जावा सदके जावा सदके जावा। फ्रेम खुली है, ये तो लग है कि हीरो बैठा है। नहीं नहीं, हीरा साहब है बैठा है। वो तो बात की गल है बेटे, जो रियलिटी है उसको भी देखो। देखो तो सही जरा। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆੜੂ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। ਅੰਸਾਰੀ ਖਲੋ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਅਸਾਂ ਆੜੂ ਲਵਾਣੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਥਕਾਣਾ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲਸੇ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜੀ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈक्टर ਚਿਹਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਚੀਤੇ, ਲਾਟਰੀ हीरा जी मैं तो लई नहीं लॉटरी। ਬਗੈਰ ਖਰੀਦਿਓ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਲਓ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਜੇ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਲਮ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਤੱਕ ਲੱਥ ਗਈ ਤੇ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਨੂੰ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। बड़ी ईद पे अभी तो बड़ी ईद पे वक्त ही नहीं बचा है। ਓਏ ਆਹੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਕਤ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜੇ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਫੁੜਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਨੇ। हीरा जी फिल्म में छड़ो लॉटरी किते। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਭੰਗੜੇ। अच्छा जी। अच्छा हीरा, ये तो बताएं कौन सी फिल्म बना रहे हैं? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੀ 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 ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ। क्या बात। ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗਰਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਸਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਏ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕਸਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ। हीरा, लेकिन ये कौन सी फिल्म है कसाई मिल गया? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ, ਕਸਾਈ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ क्या ਜਾਵਾਂ। बात है हीरा जी, क्या ਕਸਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਤੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। कैमरा इधर ओपन कर रहे हैं, हीरो उधर है। ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਕੈਮਰਾ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। क्या कहने क्या कहने। हाय हाय। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, हीरो मैं। ਓਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਚੀਤੇ, ਲੈ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੈ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰੀ, ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। हीरो मैं वा जी। ਆਹੋ ਪੁੱਤਰੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ। माँ मैं हीरो आ गया माँ। आज मैं इन गलियों में हीरो हूँ माँ। माँ तेरी दुआओं से आज मैं हीरो बन गया। मैं हीरो बन गया दुनिया वालों, मैं हीरो। ਹੀਰੋ बनने पागल नहीं बनना। हीरा जी मैं अपने महल्ले फोन कर लवा। ਉਹ ਬੇਟੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਬਣ ਲੈਂਦੇ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਆ ਗਿਆ, ਹੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਸੌਦੇ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ਦਰ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦ ਕਿ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਲੈ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਫਰੇਮ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਜੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੱਛਾ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਬੱਜੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉੱਥੋਂ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਏ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ चीता। ਜੀ, ਚੀਤਾ ਹੀਰੋ ਏ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਜਲਾ ਕਜਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਬੱਕਰੇ ਕਜਲੇ ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਹਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਏ, अच्छा, ਹੀਰੋ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਜਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਜਲੇ ਹੋ ਗਏ? 3।
ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 3 ਕਜਲੇ ਹੋਣ, ਫਿਲਮ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦੀ ਜੇ? कजलाले हो गई फिल्म। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵਾਪਸ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਹਾਏ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਏ हाय हाय क्या खिड़की खुली है ते छन छन दी आवाज आई है ते कहा के कुड़ी सीखाना लगी है। ਹਾਏ अच्छा हीरो ने गली च जांदे हीरो वाल वेख्या ते उन्हें आवाज मारी है, सुनो। सुनो हीरो परते है, उन्हें यकीन नहीं आया, उन्हें सज्जे खब्बे वेख्या है, ਹਾਏ उन्हें फिर कहा गलती सुनो। गलती सुनो। हीरो ने फिर इधर उधर वेख के कहा कि तुसी मैनू बुला रहे हो? चीते काओ काओ पुत्र। 2 नान ते एक छोलियां दी प्लेट दे दियो। ओए कट करो यार, चीते पुत्र नाश्ते तो बाहर आ, फिल्म शुरू हो गई है। अच्छा जी, अच्छा जी। लो जनाब, हीरो ने वापस उन्हें मुंह करके किया है, अच्छा तुसी मैनू बुला रहे हो? तुसी मैनू बुला रहे हो? ओए पुत्र चीते, हीरो रक्षे थले नहीं आया, अच्छा जी। बेटे गली चो लंघन डे है और हीरोइन सदन डई है। हीरोइन ते वेख चांदा टोटा ही हाँ, जी जी जी। ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਤਾਉਣੀ ਬੁਲਾਉਣ ਡਈ? ਹੀਰਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੇਖਿਆ, ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा ਹੀਰੋਇਨ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਾਈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ जी ਹੀਰੋ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਟਕ ਕਰਕੇ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਸਸਪੈਂਸ ਹੀਰੋ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀ ਖੜਕਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਈ, मैनू शर्म आंदी पई, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। मैं तुहाडे नाल गल भी करन जोगी नहीं। ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੋਲ, ਕਹੋ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਵੇਖ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ। ਹੀਰੋਇਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਜਲੇ, ਮੈਂ 2 ਕਜਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈੜਾ ਖਰੀਦ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਾਈ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਹਾਏ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਬਾਗ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਾਨ ਕਸਾਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਵੇ, ਖਰੀਦ ਕੇ 3 ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਚ ਪਾ ਲੈ ਕੱਖ ਵੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਾਨ ਕਸਾਈ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਗਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਠੱਕ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਹੀਰੋ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਚ ਗਲੀ 'ਚ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਓ ਮੈਂ 3-4 ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਚ ਨੱਸਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵਾ हाँ ਤੇ ਠਾ ਜਾ ਕੇ ਕਸਾਈ ਦੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾਟ ਅ ਸ਼ਾਟ। ਤੇ ਹੀਰੋ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਆਲੀਆ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਗਮਾ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। हीरा जी, आलिया तो मैं हूँ, ये नगमा कौन है? ਓਏ ਪੁੱਤਰ, ਓ ਬੇਟਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਆਲੀਆ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਲੀਆ ਬੇਟੇ ਸਟੋਰੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਓ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੀਆ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹਲਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠ ਤੋਂ ਛਿਛੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀਰੋ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗਾ अच्छा ए, ਤੇ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ। ਬੜਾ ਚੇਂਜ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਟ। ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਹੀਰੋ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਏ ਕਿ ਕਸਾਈ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਪੁੱਠ ਤੇ ਪੈਰ 'ਚੋਂ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹਾਏ 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 ਤੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਏ ਕਜਲਿਆ, ਓਏ ਆਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰ। ਓਏ ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਕੱਢ। हाँ हीरा जी, ये
ਕਸਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਲੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਕੁੱਤਾ ਲੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਏ ਓਏ ਭੋਲੇ ਕਸਾਈ, ਓਏ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਘਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਆਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। सदके जाऊं। ਕਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਵਿਲਨ ਵਹਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਲੀਆ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਡੰ 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 ਹੀਰੋ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਪਾਉੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਕਸਾਈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਵਹਾਨੇ ਆ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਕਸਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਧੋਤੀ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਸਲੂਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰੀ ਫੜ ਕੇ ਆਲੀਆ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਅਫਰੀਕੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। dinda badi garu dinga da jiba dadi guru dinga da ਲਓ ਜੀ ਕਸਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਡਿਪਟੀ ਕਸਾਈ, ਉਹ ਖੋਲ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵਿਹੜਾ ਤੇ ਵੇਖ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਫੁਰਤੀਆਂ। ਹਾਏ ਲਓ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਸਾਈ ਵਿਹੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਸਾਈ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਿਆ। ਕੰਧ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਸਾਈ ਨੇ ਵਿਹੜਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜੀਊਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਧ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਮੈਂ ਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ, 112 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਕਸਾਈ ਨੇ ਫੌਰਨ 112 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਸਿੱਧਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਖੜਨੇ ਆ ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ बस बस मुझे सारी फिल्म की समझ आ गई है। ਕਿਉਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये आज किसकी रूह आई है? ओ गौरी तुम तो पुराने लाहौरी हो, और तुम लाहौर के रहने वाले लोगों को नहीं जानते। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आज एक बार फिर तारीख के औराक पर नजर डालते हैं। ये आज किसकी रूह आई है? ओ गौरी तुम तो पुराने लाहौरी हो, और तुम लाहौर के रहने वाले लोगों को नहीं जानते। और मैंने सोचा आप लोग सारा दिन टीवी के ऊपर बनास्पति जियाले देखते रहते हैं, आपको असली जियाले से भी मिलाऊं जरा। वो जहांगीर बदड़। जहांगीर बदर साहब खुश आमदीद, हस्बे हाल में तशरीफ लेकर आइए। क्या कहने लाहौरी शहजादे। भुट्टो सदके जाऊं गौड़ी, रूह खुश कर देते हो। जहांगीर बदर साहब, आप तो बाकायदा वो मयार, वो पैमाना और साचा है जिस पर किसी भी जियाले को रखकर उसकी हिम्मत, उसके हौसले और वफादारी को परखा जा सकता है। वाह मेहरबानी फरीद साहब, असल में ना वो खरबूजों की मिठास रही है, हाय ना वो सरदाई का स्वाद रहा है, वाह ना ही वो पिपली की छाँव रही है, वाह ना ही उस तरह के दूध दही खालस रहे हैं, क्या कहने। ना ही वो गर्मियों की तपश रही है, और ना ही जेलें और सख्तियां बर्दाश्त करने वाले पिंडे रहे हैं, और ना ही उस तरह के कोड़े मारने वाले जल्लाद रहे। फरीद साहब, मुझे जब सियासी कैदी के तौर पे शाही किले में कैद किया गया तो कैद करने वाले मुझे कहते हैं कि बदड़
और तुम्हें तुम्हारा सब्र तोड़ के दिखाएंगे। और मैंने कहा तुम मुझे कब्र तो दिखा सकते हो, सब्र नहीं मेरा तोड़ सकते। उसके बाद क्या क्या जुल्म, क्या क्या सख्तियां नहीं हुई हमारे ऊपर किले के अंदर, मगर हमने हर दफा हंस के यही कहा, ओ बस इन्नी गल सी, इस पे वो और तप जाते हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं थी कि बस क्योंकि जबर और जुल्म जब किया जाए और उस पर यह कहा जाए कि बस, ये जहांगीर बरदर साहब जैसे लोगों का ही हौसला था। वो फरीद हौसला नहीं था, ये नजरिए की ताकत थी, भुट्टो का इश्क था। वो मेरी जेल में तो उन्होंने सांप छोड़ दिए थे। जब सांप सामने आके मेरे खड़ा हुआ है ना, मैं कहा जी ये भुट्टो, ये भुट्टो, ये नारा लगाया तो सांप उसी वक्त गडोया बन के बाहर निकल गया। ओ मैं कहा चल खिड़की हो। वाकई ये जुर्रत और हौसला था उस वक्त के सियासी कैदियों में। जहांगीर बदर साहब का एक बहुत ही दिलचस्प वाकया ये कि जब उनको 5 कोड़ों की सजा हुई, कोट लखपत जेल के अंदर भुट्टो साहब भी वहीं पर कैद थे। उनके सेल के सामने एक सहन था और वहां पर उनके कारकुनों को सजा देने के लिए उनको दिखाया जाता था कि भुट्टो साहब देखें, उनके कारकुनों को कोड़ों की सजा मिल रही है, उनको ज़हनी अजियत पहुंचे। वहीं पर जहांगीर बदर साहब को कोड़ों की सजा हुई। भुट्टो साहब ने अपनी आंखों से देखा और कहते रहे, मत मारो मेरे बदर को। हाँ जी, सामने भुट्टो साहब है, सामने कोड़े लग रहे। बाद अज़ब भुट्टो साहब ने हजाम के जरिए जहांगीर बदर साहब को एक पैगाम भिजवाया। और वो पैगाम क्या था? वो पैगाम ये था कि मत परेशान होना बदर, ये कोड़े तुम्हारे पीठ पर नहीं मेरे जिस्म पर पड़ रहे हैं। मैं नहीं घबराया, मेरे भुट्टो साहब ने मेरे सदके जाऊं प्यार किया हुआ था। देखिए बात ये है कि ये नहीं था होता कि वर्कर जेल में है और लीडर घर बैठा हुआ है। भुट्टो साहब सारे वर्करों के आगे लगते थे। क्या बात है, मैं तो खुद बदर साहब का बड़ा फैन हूँ। मेरा भी दिल करता है मैं भी जहांगीर बदर बनूं। वो जानते हो पीपल्स पार्टी पे इतना भी बुरा वक्त नहीं आया कि बदर की बदड़ी बन जाए। तुम्हारे पास कोड़े खाने वाली सेहत ही नहीं है। तुम्हें तो कोड़े मारने के लिए तीले के आगे धागा लगाना पड़ेगा और पहले कोड़े पे ही धागा तुम्हारे ऊपर लपेटा जाना, पता ही नहीं लगना कैदी है या करेला लपेटा हुआ। उथड़ बदर बनने के लिए जेल के फर्श पे सोना पड़ता है। बदर बनने के लिए मक्खी मक्खी जितना मोटा मच्छर लड़वाना पड़ता है। बदर बनने के लिए पीठ पे कोड़े खाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं जहांगीर बदर बनता। और फिर फरीद साहब मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि सिर्फ जहांगीर बदर ही नहीं, बाकी भी मेरे सारे सियासी कैदी जो है वो बब्बर शेरों की तरह डट के रहे हैं। ये नहीं हुआ कि जेलों से बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, माइकों के आगे रोना शुरू हो गए हैं। हम तो सिर्फ यही जानते थे कि जो दुल्हनें होती है उनको जब पहली दफा ससुराल में बेइज्जती होती है तो वो माइकों के आगे जाकर रोती है। वाह, क्या माइक और माइके को आपने मिलाया है। मैं तो ये हैरान हूं कि ये किस किस्म के टक्कर के लोग हैं। ये तो 2-2 4-4 दिन के बाद ही ऐसे फ्लैट हुए हैं जिस तरह किचन में उड़ता हुआ काकड़ों देख के खतूने खाना फ्लैट होते हैं। मुझे लगता है ये टक्कर के नहीं, ये टुकड़ के लोग हैं। जहाँ टुकड़ पानी देखते हैं वही प्रवास काट जाते हैं। टक्कर के तो हम थे, हम तो सीधा टक्कर भी काट मारते थे। वाकई ये कमाल टक्कर के लोग थे। बदर साहब ने अयूब खान, याया खान के दौर में स्टूडेंट लीडर के तौर पे जेलों का सामना किया, जेल गए। उसके बाद सियासी लीडर के तौर पे यानी ज़ियाउल हक दौर के अंदर, मुशर्रफ दौर के अंदर भी जेल काटी, डटे रहे, पीछे नहीं हटे। और ये कैद कूद कुछ भी नहीं होती। ये तो देखे सियासी जिंदगी का हिस्सा होता है। डट के रहना चाहिए और अल्लाह के फजल से डटे रहे हैं। मुझे तो फरीद साहब, भुट्टो साहब ने कहा था, बदड़ी पुतड़ी बेनज़ीर का साथ देना है तुमने, सियासत में उसके साथ डटे रहना। तो अल्लाह के फजल से 30 साल डटे रहे हैं बीबी शहीद के साथ। हमारी बहन थी और डट के उनका साथ दिया है। और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी को इस जुर्रत का, इस वफा का फिर फल मिलने वाला है। अच्छा, हाँ, अगला वज़ीर आज़म आपका
बिलावल भुट्टो जरदारी होगा देखो हक सच दी बात है। बदर साहब ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋ ਡਾਸ ਕੜਾਚ ਕੜੋਮ। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कोई और भी जगह है इस पाकिस्तान के अंदर, उधर चले जाओ भाई फरीद बेटा, डर लगता है। आए दिन वहां कोई हादसे हुए होते हैं, होटल महंगे हो जाते हैं, रश इतना हो जाता है, तो इसे मैं कैसे भेज दूं? एक एक मेरी औलाद है। बड़ी फूफो की तरफ चले जाते हैं सखर में पित निकलवाने। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं और हर घर में बच्चों और वालिदैन के दरमियान शुमाली इलाका जात को सैर पर जाने की बहस हो रही है। हमारे दरमियान मौजूद हैं नोमी और उसके वालिद। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक है अंकल आज नोमी बड़ा गुस्से में है, क्या बात है? गुस्से में क्या, निकलना चाह रहा है घर से, पकड़ रहा हूँ फिर निकलना, मैं जाना चाह रहा हूँ, छुट्टियां हुई हैं, घर में रहो, गर्मी देखो कितनी है। मैं कोई घर की बिल्ली नहीं हूं जो घर से निकलना चाह रही है। बेटा तो समझते ही नहीं है। वैसे एक बेटा होना भी बड़ा जुल्म है। कहते हैं एक बेटा तुम्हें कैसे भेज दूं मैं? बाकी लोग भी तो जाते हैं, एक हो या दो हो, बेटे तो सबको प्यारे ही लगते हैं ना। नोमी मसला क्या है आखिर, क्यों इतने परेशान और उदास? फरीद अंकल कोई मसला नहीं है, इस घर में बस लड़ाई होनी होती है मेरी हर बात पे। अच्छा, मैंने कहा सारे मेरे दोस्त जा रहे हैं उधर नारायण कागान। और तुमने अपने दोस्तों के साथ जरूर जाना है, मुझे ये बताओ, अकेले ही कहीं और नहीं जा सकते? और तुमने एक ही जगह ढूंढी हुई है कि कागान नारायण या पहाड़ी इलाके की तरफ भी जाना है? कोई और भी जगह है इस पाकिस्तान के अंदर, उधर चले जाओ भाई फरीद बेटा, डर लगता है। आए दिन वहां कोई हादसे हुए होते हैं, होटल महंगे हो जाते हैं, रश इतना हो जाता है, तो इसे मैं कैसे भेज दूं? एक एक मेरी औलाद है। बड़ी फूफो की तरफ चले जाते हैं सखर में पित निकलवाने। गर्मियों की छुट्टियां तो जाहिर है ठंडे इलाके की तरफ ही लोग जाते हैं, अब गर्म इलाके की तरफ तो नहीं जाना। जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, बच्चे भी अपने वालिदैन से कहते हैं ठंडे इलाकों की तरफ चलें। सारे लोग शुमाली इलाका जा चले जाते हैं, यानी जिससे पूछो उसने कहाँ जाना है, नारायण जाना है, कागान जाना है, या आगे बाबू साहब टॉप देखने के लिए चले जाना है। अब उन जगहों पे इलाकों पे ट्रैफिक जैम होती है, हादसात हो जाते हैं, और ये वो इलाके हैं जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है। तो वालिद साहब के खदशात दुरुस्त है उनके। बिल्कुल, वालिद साहब के तो हर चीज में खदशात निकल आते हैं। अभी मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि दोस्त सारे जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी जा रही हैं। एक टूरिज्म कंपनी है, मेरा दोस्त बता रहा था पप्पू के, उससे हमने करवाया है सारा टूर। तो कहते नहीं टूरिज्म कंपनी के साथ तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, ड्राइवर बड़ी गैर जिम्मेदारी से गाड़ी चलाते हैं, सिगरेट पीते हैं, फोन सुनते हैं, फिर जिस होटल का कहते हैं उस होटल में जाके रखते नहीं हैं, बुरा होटल दे देते हैं, फिर सर पकड़ के बैठना पड़ जाता है। तो क्या फरीद साहब ये मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बात तो आपकी किसी हद तक दुरुस्त है। नोमी, ट्रैवल एजेंसी जो टूरिज्म एजेंसीज होती हैं वो बिल्कुल अपने जो वादे किए गए होते हैं, जो बताते हैं उसके ऊपर वो पूरा नहीं करते हैं। वो यहाँ से वादा करके लेके जाते हैं खाने को देंगे, अच्छे होटल में रखेंगे, लेकिन ना ही होटल अच्छा होता है, ना खाना पीना वक्त पर देते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात ये कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो बड़ी रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, वो एहतियात बिल्कुल नहीं बरतते हैं। जी। फरीद अंकल, यू आर आल्सो अ यंग चैप, क्यों आप बूढ़ों वाली बातें शुरू कर देते हैं? सारी कंपनियां नहीं ऐसे करती। आप ये देखें, जो मेरा दोस्त है पप्पू, उसके अब्बू पुलिस में है, वो कहते हैं कि जुर्रत नहीं है उनकी कि कोई जो वो एग्रीमेंट करें उससे थोड़ा सा भी इधर उधर हो। इनको बस ये है कि भाई तुम लोग दोस्तों के साथ मत जाओ, फिर 15 दिन के लिए क्या करने जाना है, 5-6 दिन के लिए चलेंगे, बस हम खुद ही जाएंगे। फिर खुद आपको पता है पिछली दफा एक दफा हम इनके साथ गए थे, गाड़ी चलाते हुए सो गए थे। वो तो मम्मी को गुस्सा चढ़ा है ना, जब फिर वो बताऊं फिर क्यों मम्मा ने गुस्सा मारा। घर की बात ओपन नहीं करते फरीद साहब, पता नहीं ये दोस्त बैठ के आपस में क्या क्या प्लान बना रहे होते हैं।
अभी 6 महीने छुट्टियों के थे और इन्होंने प्लान बना लिया कि हमने ये छुट्टियों में ये करना है, हमने वो करना है, हमने उधर जाना है, आपने अपने माँ बाप को ये राजी करना है, मैं ये लेके जाऊंगा, तुम ये लेकर आना। तो इसमें अब मुश्किल क्या रह गया हुआ है? आपके पास इंटरनेट है, आप नेट खोल के जो मर्जी देख सकते हैं, जिस मर्जी टूरिज्म कंपनी को विजिट कर सकते हैं, जिस मर्जी इलाके की सारी चीजें देख सकते हैं, जो मर्जी प्लान कर सकते हैं। हमने यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, इस होटल में किसी और जगह पे चले जाओ, तुमने कौन सा वहां पे जाके आलू चने लगाने हैं? मैं कोई आपकी तरह परिंदा नहीं हूँ कि जिधर मर्जी उड़ जाऊं। यार लेके तुम्हारे वालिद नहीं जा रहे, गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हो। तो मेरे वालिद साहब से मेरी बात हो रही है। व्हाई आर यू टॉकिंग? मम्मी आप टेंशन न लें, अब मैं मुल्तान जा रहा हूँ, आप मेरे साथ मुल्तान चलें। आप तो सिर्फ मुल्तान इसलिए जाते हैं कि आपका दोस्त वहां से कुछ 2-3 किलो आम दे देता हो। यार उसने गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए जानी है, तुम मुल्तान लेके जा रहे हो नोमी को। मैं फरीद साहब मरी कम जाता हूँ, मैं मरी जाता हूँ ना तो अयूबिया वाले बंदर भी उधर आ जाते हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी है। बात ये है फरीद अंकल, सारे एसओपीज का ख्याल रखा जाए तो आप कहीं भी जाएं कोई खतरा नहीं है। इस चीज का तुम्हें सब पता है, कौन सा एसओपीस है, कौन सा काम ठीक है, कौन सा होटल ठीक है। कभी जिंदगी में कोई खुशी दी है तुमने? कौन से ऐसे नंबर लिए कि मैं खुशी से तुम्हें भेज दूं? ये देखें, हर गर्मियों की छुट्टियों में ये ताने देने शुरू हो जाते हैं कि नंबर तुम्हारे नहीं सही आए, सैर करने तुमने जाना है, तुम्हारी पोजीशन कभी आई नहीं है सैर करने। अब जिनकी पोजीशन नहीं आती है, जिनके नंबर नहीं अच्छे आते, वो मर जाए, क्या करे वो। यार कभी हौसला अफजाई भी किया करें ना। नोमी को हर वक्त डांटते रहते हैं आप, उसके नंबरों का ताना देते रहते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं। उसकी हौसला अफजाई करें, उसके साथ बैठें, बजाय इसके कि वो अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाएं। हौसला अफजाई इन्होंने सिर्फ मामा की करनी होती है, वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए। जब इनके गेस्ट आने होते हैं ना दोस्त, फिर मामा को कहते हैं मेरी शेरनी ने 15 बंदों का खाना तो ऐसे पका लेना है। मामा भी मुझे कहती हैं कि ये तुम्हारा बाप बड़ा तेज है। तो उस वक्त मेरी तारीफें करता है जब इसको मुझसे काम होता है। और मेरी दफा इनको हर चीज नजर आनी शुरू हो जाती है। उस तरफ क्यों जाना है, उधर तो इतनी खाइयां होती हैं, इतने इतने ऊंचे पहाड़ होते हैं, किसी ना अल्लाह ना करे खाई में गिर गए फिर क्या होगा। कुछ नहीं होता भाईजान, मेरी बात सुने, अल्लाह के सुपुर्द आप जाने दें नोमी को उधर पहाड़ी इलाके में। माशाल्लाह वैसे भी जितना नोमी का कद है, ये छोटी मोटी खाई में तो खुद उतर जाता है, कुछ नहीं होता इसको। नहीं गौरी अंकल, सारी दुनिया जाती है, हमारे लिए ही पहाड़ हैं और खाई हैं। अब तो इतनी खुली खुली सड़कें बन गई हैं। खुद अपने दोस्तों के साथ इनसे पूछे, ये 4 महीने पहले गए नहीं थे। बिजनेस टूर पे गया था मैं। बिजनेस टूर मरी में होता है। हमारी मीटिंग थी हमारी वहाँ। सर्दियां थी उस वक्त, बिजनेस टूर कौन सा, उधर से बर्फ इकट्ठी करने गए थे। भाई साहब माफ कीजिएगा, आप खुद बिजनेस टूर पे जाते हैं, मरी जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। ये सब बिजनेस मीटिंग्स अगर आप करते हैं तो किसके लिए बिजनेस करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं। जाने दे, साल में एक दफा अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है उसको ले जाया करें, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वो जनाब लेकर जाता हूँ, पूछे इससे। अभी 2 महीने पहले ये मेरे साथ फैसलाबाद नहीं गया? हाँ गए थे फैसलाबाद, इनके कजन फौत हो गए थे, उनके जनाजे पे गए और कह दिया कि घूम लिया है। आप जब एक सैड मूड में कहीं जाते हैं किसी जगह अफसोस करने, तो उसको भी आप सैर के हिसाब किताब में डाल लेते हैं। जब आपको सैर का कहा जाए तो वो सिर्फ सैर होती है, तो वही सैर लगती भी है। अब आप कहीं शादी पे ले जाएं या कहीं अफसोस पे ले जाएं तो कहते हैं वो भी तो गए थे। ये करते हैं ये नहीं, ये तो फिर मामा भी कहती हैं पैसा लेके आपने कहाँ जाना है, यही पड़ा रहना है पैसा। अच्छा वैसे अगर आप अफोर्ड करते हैं तो क्यों नहीं लेके जाते हैं बच्चों को? फरीद साहब, इसका एक दोस्त है, वो छुट्टियों में हमेशा अपने दाद के जाता है। और मैं जब रिश्तेदारों की बात करूं, बेटा उधर चले, ये गुस्से में आ जाता है, नाराज हो जाता है, मैं उधर तो नहीं जाऊंगा। देखें वो अल्लाह माफ करे, ये कहना नहीं चाहिए, वो उनको वो अफोर्ड करते हैं, अपनी दादी के घर चले जाते हैं, उनके पास जितना होते हैं अखराजात वो उधर चले जाते हैं। तो ये भी इनके पास है सारा कुछ, दोस्तों के साथ घूमने के लिए इनके पास पैसे होते हैं। तो बच्चों की दफा कहते हैं जी नानी के घर चले जाएं, दादी के घर चले जाएं, फुफ्फो की तरफ चले जाते हैं। तो
फरीद अंकल देखें, जब कोई बच्चा कहता है तो वालिद को चाहिए कि अगर वो कर सकता है तो कर। बिल्कुल सही कह रहा है नोमी, अगर अफोर्ड करते हैं तो बच्चों को सहूलत देनी चाहिए। अब देखें इनके पापा ने छोटी सी गाड़ी रखी है, उसमें नोमी बेचारा पूरा ही नहीं आता। उस छोटी गाड़ी में बेटे को लेके जा रहे होते हैं, लगता जराफा लेके जा रहे हैं। वैसे तो सुन नहीं सकते। अब अच्छे रहे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हर इंसान के जिस्म के अंदर 1 लीटर यानी 2 से 3 बोतलें जो हैं वो फालतू होता है। अरे वाह। और जब कोई खून अतिया करता है हाँ जी। तो वो 3 दिन में ब्लड पूरा हो जाता है माशाल्लाह, और उसके सेल्स जो हैं ब्लड के जी जी। वो 56 दिन में पूरे हो जाते हैं। अच्छा जी, अपना फरीद सियाना साहब, यार फरीद रईस साहब यार, खुदा का ये 2 दिन पहले खून का अतिया देने का आलमी दिन मनाया गया। जी। तो मैं 2 दिन से ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। सही। जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत की जान। सुभान अल्लाह, तो ये कितना बड़ा अमल है यार, ये सुभान अल्लाह। ये खून का अतिया देना कितना बड़ा अमल है। मामूली बात नहीं है अजीजी, ये कि हाँ, इंसान की मामूली जान बात बचाना। नहीं है। वैसे किरदार के हवाले से या आमाल के हवाले से या अल्लाह ताला की खुशनुदी के हवाले से ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी बिल्कुल। और वैसे मेडिकली ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी फायदेमंद बात है जी। मैंने खैर इसकी कुछ तफसील तो मैं बताया ही था कि मैं इंटरनेट खोल लेता हूँ। तो वो मैंने खोला जब इंटरनेट खून का अतिया देने के हवाले से, जी जी। तो मैंने देखा कि एक 80 साला खातून है जोसेफिन माइकलक। जी। उन्होंने अपनी जिंदगी में 203 मरतबा खून का अतिया दिया है। माशाल्लाह। 203 खून की बोतलें उन्होंने अपनी जिंदगी में जोसेफिन साहिबा ने डोनेट की। बहुत बड़ी बात है। हाँ, और पहली दफा उन्होंने 22 साल की उम्र में खून अच्छा। ब्लड डोनेट किया था। जी जी। अच्छा, इस हवाले से हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा मरतबा खून की बोतलें दी हैं, जिसमें जंग से एक बड़े प्यारे हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारा शो भी देखते हैं बड़े प्यार से, डॉक्टर फैसल साहब। पूरा नाम उनका डॉक्टर फैसल इसहाक है। जी जी। उन्होंने बताया कि मैंने 155 मरतबा खून दिया। वाह माशाल्लाह। जो नौजवान हैं खास तौर पे उनसे मैं कहूँगा कि अपनी जो एनर्जी है या आपके जो जज्बात हैं वो ऐसे कामों में सर्फ करें। ये हमारे जो राना शान साहब प्रोड्यूसर हैं, इनके छोटे भाई हैं राना रोशान जी जी। उन्होंने 55 दफा खून दिया है। माशाल्लाह। वाह। मतलब इस तरह का जज्बा नौजवानों में हो ना जी, हाँ जी। तो बहुत सा लोगों का फायदा हो जाए और आपकी भी सेहत अच्छी हो, अपना भी। हाँ जी। बीमारियां कम हो जाएं मुल्क में बिल्कुल। से। तो ऐसे लोग जो हैं इनकी हौसला अफजाई करना, हाँ जी। इनको सराहना, इनके लिए दुआ करना बड़ा जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये जो दिन मनाया जाता है खून का अतिया देने वाले हैं उनका, जी जी। तो उसमें असल यही है कि इनको सराहा जाए। बहुत अच्छा। और जाहिर है अवेयरनेस भी लोगों को दी जाए कि इसमें कोई ऐसी खतरनाक बात बुरी नहीं। बात कुछ लोगों के ख्याल में ये आता है कि सेहत डाउन हो जाती है खून हाँ देने जी, से, हाँ। या वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है इंसान। बिल्कुल हरगिज ऐसा नहीं है। यानी माहिरीन ये कहते हैं कि हर इंसान के जिस्म के अंदर 1 लीटर यानी 2 से 3 बोतलें जो हैं वो फालतू होता है। अरे वाह। और जब कोई खून अतिया करता है हाँ जी। तो वो 3 दिन में ब्लड पूरा हो जाता है, माशाल्लाह। और उसके सेल्स जो हैं ब्लड के जी जी। वो 56 दिन में पूरे हो जाते हैं। वाह। और जो नया खून और सेल्स बनते हैं वो पुराने से ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा ताकतवर होते हैं। माशाल्लाह। सही। इसलिए डॉक्टर्स हजरात ये कहते हैं कि साल में 2 दफा जरूर खून देना चाहिए। फिर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की रिसर्च ये है कि जो लोग खून अतिया करते रहते हैं जी। उनके अंदर दिल का दौरा पड़ने और कैंसर की बीमारी होने के 95% जो है ना जी खतरात वो कम हो जाते हैं। यानी ये इंतहाई अच्छी चीज है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो कि हम बिल्कुल ही पीछे रह गए हुए हैं। बल्कि
हम तो जुगतें बनानी शुरू हो जाती है ना कि जुल्फी जैसा बंदा अगर खून देने चला जाए तो कहते हैं भाई जी बोतल दी थां इनू ही लटका लो ते जरा लक नू जोर लाओगे तो खून निकल आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें भी खून उतना ही है माशाल्लाह। वैसे लगता है कि 2.5 कतरे हों। अच्छा अजीजी, माफी के साथ आपने आज गैलस नहीं पहने। यार गैलस वो चुप रहो बस। नहीं पता तो चले क्या कोई हुआ। बात यार तो- वो कुर्बानी वाला बकरा लिया है तो संगली नहीं थी लब रही तो फिर अपने गैलस से बांध आया हूँ। ऐसे लिए बकरा ये होया है। हाँ, नहीं तो गैलस बकरे की खरीदारी कर ली है अजीजी ने। गैलस उसको गले में लगाए या उन्होंने भी पन के ही आए। यार बात ब्लड की हो रही है, अपने भाई आने के नहीं। ब्लड की बात हो रही है। फिर हम गोगे जैसे बंदे को कह देते हैं कि भाई जी ये तो भावे पीपा काट लो। यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वाह। हर शख्स जो है उसके अंदर जो ब्लड है वो मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक या डॉक्टरों के मुताबिक हर बंदे के अंदर खून फालतू पड़ा हुआ। अच्छा, और है भी उतना ही, ये नहीं है कि कोई बहुत सेहतमंद है तो उसके अंदर कोई 20 लीटर खून है, हाँ जी। कोई बहुत कमजोर है तो उसके अंदर कोई 2 लीटर कम खून है, है। हाँ जी। मिकदार तो एक ही जितनी है अब खून। कुछ लोग ऐसे हैं, कई अल्लाह माफ करे, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनसे खून की कमी वाकया हो जाती है, जी तो वो तो खैर एक अलग बात है, वो तो डॉक्टर्स को भी पता चल जाता हाँ है। जी। और वो कमजोरी पहले ही ऑलरेडी फील कर दो। हट्टे कट्टे लोग जो है ना जी, वो ये बहस कर रहे होते हैं कि मैं नहीं खून देना भाई, कमजोरी हो जाती है। अच्छा अजीजी, हमारे यहाँ एक चीज़ और भी है ना कि अक्सर और बेशतर हमारे दोस्त अहबाब जो हमारा सर्कल है उसके अंदर अक्सर ऐसी इमरजेंसीज पड़ जाती हैं जिसमें लोग ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि यार उसकी तबीयत ख़राब है, खून की ज़रूरत है। ऐसे मौके पे हमने देखा ये यहाँ पे कि लोग पीछे नहीं रहते हैं, यानी वो अगर एक की ज़रूरत होती है तो 10 लोग आके खड़े हो जाते हैं कि लो जनाब खून लोग जिस चीज़ यार की मैं ज़रूरत है। आपको हैरान कुन बात बताऊं, मेरे एक कजन हैं फूफो के बेटे, जी वो बीमार थे, कोई 2-3 साल पहले की बात है। तो उनको ब्लड की ब्लीडिंग नहीं थी उनकी रुक रही, ऑपरेट कोई हुआ उनका तो उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। तो मेरे एक दोस्त ने ना जी, मैं परेशानी में भाग दौड़ कर रहा था, कोई इधर से उधर से पकड़ रहा था, तो वो मेरे एक दोस्त ने कहीं नेट पे लगा दिया। आप यकीन माने बखुदा, ये जो जेल है ना, कैंप जेल, यहाँ से बहुत सारा वो जो कोई सिपाही वगैरह जेल के संतरी जो जिन्हें कहते हैं, वो 5-6 लोग आ गए। अरे वाह। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से बच्चियां आ गई और रक्शे पे बैठ के आ गई। मैं इतना, मुझे प्यार आया उन बेटियों पे कि यार ये कैसी बच्चियां हैं देखो। वो मैंने कहा आप लोग क्यों इतनी रात को निकल आई? तो कहती हैं सर हमने वो पढ़ा था तो हमने कहा कि जाके दे आए। ये जज्बा है हमारा। मतलब यहाँ पाकिस्तान में जज्बे की बिल्कुल कमी नहीं है, मगर उस जज्बे को अच्छे कामों में इस्तेमाल करते रहे तो हाँ, बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और अहम तरीन बात ये है कि ये कुछ जो ऐसे अदारे बने हुए हैं, जैसे मैं तो सुंदस फाउंडेशन को जानता हूँ, बल्कि उसके साथ में मुंसलिक भी हूँ जी। तो वहाँ पे आप जाएं तो बच्चों की जो बेचारे थैलेसीमिया वगैरह के पेशेंट हैं, पेशेंट बच्चे, हाँ जी यार इतना तरस आता है और इतनी अहमियत का एहसास होता है ब्लड की, बिल्कुल कि सर। ब्लड कितना चाहिए इस मुल्क के अंदर, और इन फूल जैसे बच्चों को चाहिए। हाँ। और उनके वालिदैन जो है उनके मुंह से सारी खुशियाँ और चमक खत्म हो चुकी होती है, और वो अपना बच्चा उधर लटा के उसे ब्लड लगवा के तो पास बैठे हुए हैं माएँ बेचारी, बच्चियाँ, खवातीन बैठी हुई हैं। इतना दुख होता है और इतनी इस बात की अहमियत उजागर होती है दिल में पता उस चलता है, बिल्कुल। वक्त, अगर उधर जाके देख लें कि ये खून देना कितना जरूरी है। और उनकी भाई आपका भी भला हो रहा है, आपकी सेहत ठीक हो रही है, हाँ जी मेडिकल रिसर्च कह रही है, जी। तो इधर भी भला हो रहा है और फिर इधर जान बचाई जा रही हाँ है। जी, सबसे और एक इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाने उनकी को। तो जिंदगी यही है कि रोजाना उनके बच्चों को जो है खून मैसर आ जाए बस। हाँ हाँ यार, घर बिक गए हैं, दुकानें बिक गई हैं, हर चीज बिक गई है ऐसे मरीज बच्चों के वालिदैन की। आप कभी उधर जाके स्टोरियां उनसे सुननी शुरू करें तो बाखुदा आपके आंसू नहीं रुक सकते। इसलिए चूंकि वो खून का तिया का आलमी दिन भी है, जी जी तो मैं अपने मुल्क के जो हैं जंग के डॉक्टर फैसल इसहाक साहब, ऐसे लोगों को सलूट पेश करता हूँ। और मैं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को कहूँगा
कि डॉक्टर फैसल इसहाक जैसे लोग आगे आए, इस तरह के बने, इनको रोल मॉडल अपना समझें। ये एक बहुत बड़ा मिशन है, ये कोई छोटा काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक आदमी ने अगर अस्पताल बना लिया है अब खैराती, या एक आदमी ने कोई डिस्पेंसरी बना ली है खैराती, या एक आदमी जो है वो किसी अस्पताल को उसे चलाने के लिए डोनेशन देता है, हाँ जी, तो ये उसके बराबर चीज है। बिल्कुल सर। एक बंदा जो है वो अपना खून दे रहा है जाके, बिल्कुल। और तवातर से दे रहा है। और जैसे मैंने बताया कि जितनी ज़रूरत है, अगर हर शख्स अपने आप को ये आदत डाल ले कि भाई खून कोई ऐसी बात नहीं, चलो 3 महीनों में एक दफ़ा ना सही 6 महीनों में एक दफ़ा ज़रूर देना चाहिए, हाँ जी। तो वो बच्चे भी जो हैं वो भी सांस उनकी चलती रहे। बस अजीजी, शऊर उजागर करने की बात है। जिस तरीके से जो फवायद बताए तुमने कि जिसके अंदर के हार्ट डिजीजेज और दूसरी बीमारियों से जो है वो बचाव, इसके अंदर 95% तक बचाव मुमकिन है। हाँ जी। तो शऊर उजागर अगर लोगों में हो जाए, लोग ये समझ लें कि ये कितना जरूरी है, हाँ यानी जी, आपकी अपनी सेहत के लिए भी और जिसके लिए ये खून इस्तेमाल होगा उसके लिए भी, तो क्या ही बात है। बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, और ये ऐसी हौसले वाली बात है। और मैंने पतले पतले ऐसे बेचारे कमजोर से लोग देखे हैं, वो बब्बर शेर जाके ऐसे, और कई ऐसे देखा। गोगा एक दफा एक मरीज को देखने गया तो उसकी सुई उतर गई इधर से, तो ब्लीडिंग हो गई, तो ये नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। तो डॉक्टर कहन यार असी ये सुई सही करिए या जानवर बाड़ी चो बाहर कढ़िए। क्योंकि वैसे क्या हुआ था तुम्हें, क्यों बेहोश हो गए थे? मैं किसी का ब्लड नहीं देख सकता, दिल कमजोर है इसका। मैं सेंसिटिव हूँ, कमजोर नहीं हूँ भाई। यार तुम जब मरीज का फ्रूट खा जाते हो उस टाइम सेंसिटिव नहीं होते? बस कर दो यार, क्यों उसके पीछे पड़ गए? नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जिंदगी रियाजी का सवाल नहीं जिसका जवाब मालूम हो। जिंदगी फलसफा है, जितना खोजें उतनी परतें खुलती जाती हैं। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।